Yesterday's questions, two questions were there. One was, if the ray of light falls normally on this surface, this is polished surface, plane surface, normally on the surface, then angle of incidence equals 0 degree and hence angle of reflection is equal to 0 degree according to laws of reflection of light. So I equals 0 degree, R equals 0 degree. What does it mean? R equals 0 degree means the angle of reflection is 0 degree, so it will bounce back along the same path. So whenever normal incidence will be there on the surface, the light after falling will bounce back along the same line. Okay, so you have to put again here an arrow mark. First this arrow mark while coming, this arrow mark while jumping back along the same path. That's why I equals 0 डिग्री, R equals 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल के साथ आ रहा है, नॉर्मल के ऊपर आ रहा है, कोई एंगल नहीं बना रहा है. कल हमने बताया था या तो ऐसे आए चाहे ऐसे आए, पैरेलल में भी 0 डिग्री एंगल और आपस में आएगा तो भी 0 डिग्री. सो इट इज कमिंग नॉर्मल, सो 0 डिग्री. इट इज गोइंग बैक अलॉन्ग द नॉर्मल, सो इट इज अगेन 0 डिग्री. सो I equals 0, R equals 0. ये ट्रेस करने के लिए पूछा जाता है, CBSE क्वेश्चन है, NCERT में भी है. What is the angle of incidence and angle of reflection for the normal incidence? So what shall be the answer? For normal incidence, angle of I equals 0, angle R equals 0. It means that it will retrace back along the same path. Okay. Now I proceed for the next topic. One more question was there, and question was, on this surface, this light is coming at an angle of 30 degree. What is angle I? What is angle R? Some students have given the right answer. First of all, if this is the incident ray, we must have the normal. And if it is normal, I have discussed earlier, this is 60 degree. If angle of I equals 60 degree, R must be 60 degree. So this is 60 degree. So answer is I equals 60 degree and angle R equals 60 degree. And what is this angle? 30 degree, because here is 30 degree. So 60 plus 30, 90, 60 plus 30 is 90. Clear? So this is all about yesterday's topics related to some queries and some questions I had given you as assignment. So I have discussed here. Now let's start here the new topic, today's topic, and this topic is image. Image. What do you mean by image? Whenever two rays of light, at least two rays of light, more than two rays of light also may be possible, not a single one, two or more than two rays of light. So I am taking here for convenience any two rays of light. Whenever two rays of light intersect each other, then intersect means cut करता है, intersect each other, then the image is formed at the point of intersection. So what is the condition to form the image? At least two rays of light must intersect each other at a point or appear to intersect. We shall have these two things, real intersection and virtual intersection. So whenever two rays of light intersect each other, then the image is formed at the point of intersection. So what is the image? How can you define this image in another way? Image is formed by the intersection of at least two rays of light
either by actual intersection or by virtual intersection. So image is formed. Now two types of images are there. Types of images. There are two types of image. Number one, real image, and second one, virtual image. Real image and virtual image. Real means वास्तविक, virtual means काल्पनिक, कल्पना में, रियल नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा. रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज काल्पनिक प्रतिबिंब. सिर्फ अपीयर होगा, रियल इंटरसेक्शन नहीं होगा, इसमें रियल इंटरसेक्शन होगा. नाउ हाउ कैन यू डिफाइन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज? एंड often question is asked, write two difference or write three differences between real image and virtual image. So see here, real image and virtual image. First, real image. How can you define this real image? Whenever two rays of light, I say at least two rays of light, meet actually at a point after reflection from the mirror, then the real image is formed. I shall repeat. Whenever at least two rays of light actually intersect at a point after reflection from the mirror, then the real image is formed at the point of intersection. Means what type of intersection should be there? Actual intersection. किसका actual intersection? Of two rays of light. At least two rays of light. हम रे डायग्राम बनाएंगे तो दो ही रे लेके बनाते हैं. Infinite number of rays may be there. Actual intersection of two rays of light होनी चाहिए after reflection. After reflection कहाँ से? From the mirror. From the, then real image will be formed. Virtual image. वर्चुअल इमेज काल्पनिक. डेफिनेशन में चेंज कर. व्हेन और virtual image is formed by the intersection of in another way we can define here, virtual image is formed by the virtual intersection of at least two rays of light after reflection from the mirror. सेम डेफिनेशन, चेंज कहाँ करना उसे समझेंगे. वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ एट लीस्ट टू रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर. रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर. सो दिस इज द मेन डिफरेंस. सो वर्चुअल इंटरसेक्शन विल बी देयर. वर्चुअल इंटरसेक्शन of at least two rays of light after reflection from the mirror. वर्चुअल को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, एक्चुअल लाइन को कैसे इंटरसेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, I shall be discussing later on. So these are two types of images, real image and virtual image. Now what are the other criteria or other characteristics of real images and virtual images? I shall discuss in column wise. This is called differences between real image and virtual image. So this is the question. The difference, write differences between real image and virtual image. So let here the differences between real image and virtual image.
और रे डायग्राम जब हम बनाएंगे तो इन दोनों को देखते हुए चले जाएंगे, सारा पॉइंट वहाँ फिर क्लियर हो जाएगा रे डायग्राम में। ठीक, सो दीज आर द बेसिक फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल इंटरसेक्शन, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट। वर्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है, वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट। सेकेंड पॉइंट, it is obtained on the screen, ये स्क्रीन पर, पर्दे पर ऑब्टेन किया जा सकता है, एक्चुअल, बिकॉज एक्चुअल इंटरसेक्शन विल बी देयर, सो स्क्रीन पर वो ऑब्टेन किया जा सकता है। नाउ सेकेंड पॉइंट हियर, इन दिस केस इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, इट कैंट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, इसे स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। थर्ड पॉइंट, रियल इमेज इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इन्वर्टेड। हियर थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज इरेक्ट। कीप रिमेंबर हियर, इन्वर्टेड उल्टा, इरेक्ट सीधा। जो प्लेन मिरर हमारा है घर पर, वी सी द फेस एंड वी सी द इमेज एज इरेक्ट वन, जैसा हम है सामने में, हमारे पीछे में उसी तरह का एक इमेज बनता है, दैट इज कॉल्ड सीधा, दिस इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज, एंड दैट इज नॉट रियली ऑब्टेन्ड, दिस इज वर्चुअल वन, बिकॉज if this is the mirror and you go other side, another student or your friend, if go another side of the mirror, he or she cannot obtain the image on the screen. अगर मिरर यहाँ है, आपका फेस यहाँ है, उधर जाके कोई इमेज नहीं आएगा स्क्रीन पर। अगर हम चाहें कि इधर एक स्क्रीन लगा दें और इस स्क्रीन पर हमारा इमेज आ जाए, आएगा नहीं आएगा। लेकिन इस दर्पण में कैसा दिखता है, लगता है वो इमेज यहाँ बन रहा है कुछ, जितनी दूर पर हम यहाँ खड़े हैं उतनी दूर पर हमारा इमेज पीछे बनता हुआ नजर आता है, सिर्फ नजर आता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्चुअल, काल्पनिक, एंड दिस इज कॉल्ड इरेक्ट। सो these are the differences, actual intersection of light, virtual intersection of light means एक्चुअली जो इंटरसेक्ट करके बनाएगा वो स्क्रीन पर आएगा, जो वर्चुअल इंटरसेक्ट करके बनाएगा वो स्क्रीन पर नहीं आएगा, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। जो एक्चुअल इंटरसेक्शन से होगा वो हमेशा उल्टा बनेगा, और जो वर्चुअल इंटरसेक्शन से होगा वो हमेशा सीधा होगा। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस। अब मिरर के आधार पर अगर हम लोग डिफरेंस लिखना चाहें तो और डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं, बट दीज आर द बेसिक इमेजेस और बेसिक डिफरेंसेस। जब इसके आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग मैग्निफिकेशन, तो यहाँ मैग्निफिकेशन के रिस्पेक्ट में भी हम लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में डिफरेंस लिख सकते हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, राइट। नाउ प्रोसीड टू इमेज फॉर्मेशन। ये इमेज बनता कैसे है, मिरर्स में ये बनता कैसे है। सो इमेज फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट रेज टू बी देयर। किसी भी इमेज को बनाने के लिए वी मस्ट हैव 4 इंपॉर्टेंट रेज, और उन चारों रे को अगर हम जान जाए, टॉपिक हमने लिया है पहले जिसमें हमने डिस्कस किया है कि व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, अगर उस पर ध्यान दिया जाए, उनको बढ़िया से पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है, और समझने के बाद इंपॉर्टेंट रेज, आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इंपॉर्टेंट रेज। वी हैव 4 इंपॉर्टेंट रेज। इन 4 इंपॉर्टेंट रेज में कोई भी 2 रे लेके, क्योंकि हमने बोला है एटलीस्ट 2 rays आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इमेज, सो एनी 2 rays यू हैव टू चूज बाय कन्वीनियंट एंड यू हैव टू फॉर्म द इमेज। और जैसा जैसा मंत्र के अनुसार से बताया गया है, अगर आप ध्यान से उसको सुने और एक्चुअल मेजरमेंट करके बनाएंगे, तो हमने पहले भी बोला था आँख बंद करके इमेज बना सकते हैं, वो बनेगा। सो लेट अस हैव हियर important range, 4 important range for image formation.
4 important rays for image formation. First way, I have discussed first way in concave mirror. कॉन्वेक्स मिरर में हमने प्रैक्टिस करने के लिए बोला था आपको, इन केस ऑफ concave mirror, any ray coming parallel to the principal axis either actually passes or appear to pass through the focus of the mirror. ये हमने कल बताया कि कभी भी कोई रे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगा या जाता हुआ नजर आएगा, फोकस पर. नाउ ray diagram for this ray. This is concave mirror, polished surface. This is pole. This is principal axis again. This is pole. This is the point. Suppose focus F. There will be PF. Then will be FC. Center of curvature. हमने बोला था PF और FC का डिस्टेंस बराबर लेंगे हमेशा. स्केल यूज करेंगे मेजरमेंट के लिए और स्केल से मेजर करके हमेशा लेंगे. अभी हम सिर्फ एफ को बना रहे हैं. सो इफ दिस इज द फोकस, देन व्हाट इज दिस इज फर्स्ट वे, एनी रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज द रूल, इट मस्ट पास थ्रू द फोकस. कहीं दूसरे जगह से नहीं जाएगा, कल डिस्कस हुआ है, यहीं से जाएगा. इसे ज़्यादा क्लियर करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, पी एफ इक्वल्स एफ सी ले सकते हैं. जितना पी एफ उतना एफ सी. आप स्केल से मेजर करके लेंगे सब. इफ दिस इज 6 सेंटीमीटर, यू हैव टू टेक 6 सेंटीमीटर एंड इफ इट इज 6 सेंटीमीटर हियर, इफ इट इज 2, दिस इज 2. कल बताया इट इज सी. देन बताया क्या था आपको, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा. जब नॉर्मल होगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उतना ही बड़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. ये आई होगा, ये आर होगा, ये यहीं से पास करेगा. इसे छोड़ के अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे से ले जा रहे हैं रे को, इफ रे इज कमिंग बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आल्सो, देन इट विल फॉलो द सेम रूल. दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज पासिंग थ्रू द फोकस. सो दिस इज द फर्स्ट रूल, एनी रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मस्ट पास थ्रू द फोकस. Must pass means actually passing in this mirror, but if we have convex mirror, this is convex mirror. याद है ना सर, केव साइड से रिफ्लेक्शन, वैक्स साइड से रिफ्लेक्शन. if this is convex mirror, this is the principal axis, this is pole. suppose this is the focus, focus तो उधर होगा क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर, इधर नहीं बना. now this is the ray coming parallel to the principal axis. स्केल यूज कर दिया हमने. चलो, कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ किधर जाएगा ये, कल पूछा गया था. इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर पार कर जाएगा. पार नहीं करेगा ना, क्योंकि पॉलिश किया हुआ. उधर नहीं जाएगा, जाना तो इधर ही है, बैक तो इधर ही होगा, क्योंकि जिस मीडियम से जाता है उसी मीडियम में बाउंस बैक करता है, तो इधर ही आना है. रूल क्या बताया गया था. फिर इसी काम को करो, पी एफ देन दिस इज एफ सी. जितना पी एफ उतना एफ सी, उतना सी ले लो. ठीक है, पी एफ एफ सी, जितना पी एफ उतना सी. फर्स्ट में एक नॉर्मल डाल दो. स्केल लेना है, स्केल से एक नॉर्मल बना देना है, पार कर देना है. ये पार हो गया. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. रूल I इक्वल्स आर. आई के बराबर आर बनेगा. जब आई के बराबर आर बनेगा तो दिस इज
the ray. This is bouncing back along this direction. This is r. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. लाइट उधर नहीं गया, लेकिन हो क्या रहा है, बिल्कुल इसके स्ट्रेट में डॉटेड करते हुए, ये कैसा है, कैसा लाइन है, डॉटेड लाइन, डॉट डॉट करके बनाएंगे. दिस इज द सिंबल फॉर वर्चुअल पॉइंट, वर्चुअल लाइन. एंड सॉलिड लाइन अगर हम बनाते हैं तो कैसा है, एक्चुअल लाइन. जो दो टाइप का मिरर, आपको दो टाइप का इमेज बताया था हमने, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, वो यही से पहचान होगा. इफ डॉटेड लाइंस के इंटरसेक्शन से बनता है इमेज तो वर्चुअल इमेज होगा, और अगर एक्चुअल लाइन के इंटरसेक्शन से बनता है तो रियल इमेज होगा. अब अपने मन से किसी को डॉटेड, किसी को सॉलिड लाइन नहीं कर सकते हैं. इधर नहीं जा रहा है इसीलिए हमने उसको डॉटेड किया. नाउ टेक केयर हियर. ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है. पी एफ एफ सी बराबर लेना है, सी ले लिया. दिस इज द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब करते क्या है बच्चे, एक स्टूडेंट ने स्नैपशॉट भेजा है जिसमें गलतियां हैं. हमने बोला था आई सेल मेक इट वेरी क्लियर इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो वो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट सुनेंगे, वो स्टूडेंट ध्यान देंगे जिन्होंने स्नैपशॉट भेजा है. गलती कहाँ है उसको मैं दिखा रहा हूँ. इफ दिस इज द एक्चुअल रे ऑफ लाइट then it cannot pass in this direction because this is polished bulb. It has to bounce back in this direction. सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, स्केल लेके, क्योंकि हमें पता है any ray coming parallel to the principal axis either actually passes through the focus or virtually pass through the focus. Either actually meet at the focus or virtually meet at the focus, दो ही होगा. ऑब्वियसली इधर फोकस की ओर जाएगा और जाना चाहेगा. सबसे पहले यहां से एक डॉटेड खींच देना है. इसके बिना हटाए इसके अलोंग में इधर स्ट्रेट खींच देना है. अब ये एरो मार्क यहां पुट हो जाएगा. इसका मतलब इधर जाना चाह रहा था लेकिन है नहीं उधर, इधर डॉटेड है. सॉलिड किधर, इधर, यानी रियल इंटरसेक्शन, रियल रिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, इधर. इफ यू टेक अ रे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ऑल्सो, then follow the same rule. First of all, have a scale, make here the dotted line up to this point. Without replacing the scale, proceed this way. अब ये क्या हो रहा है, किसी को देख के पता चल रहा है गलती क्या स्टूडेंट का हुआ है, उसने ऐसा किया है. कन्वेक्स मिरर, this is pole, this is focus, rays coming like this. स्टूडेंट इज ड्रॉइंग लाइक दिस, पहले उसी को. अब इसके सीध में जहां होगा वहां फोकस होना चाहिए, नहीं, वो इसने ऐसे मिला दिया. आर दीज एंड दीज आर दिस टू लाइंस, डॉटेड लाइन एंड सॉलिड लाइन along the same path? No. So it is wrong. It is wrong. So what is the rule? तरीका क्या है, स्केल लेंगे, स्केल से पहले उस पॉइंट को मिला लेंगे जहां फोकस है, क्योंकि रूल क्या है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो फोकस से जाएगा या जाता हुआ नजर आएगा. तो अगर जाता हुआ नजर आएगा तो डॉटेड मिला लेंगे, एक्चुअली जाएगा तो सॉलिड बना देंगे. ठीक, इसका फोकस उधर है तो उधर पॉलिश किया, उधर जाएगा नहीं, पहले स्केल लगाएंगे. स्केल को दो बार नहीं लगाना है, दो पार्ट में नहीं लगाना है. दीज आर नॉट टू डिफरेंट लाइन्स. एक ही लाइन का वो इधर से देखने से लगेगा, इधर से कोई देखेगा तो उसे लग रहा होगा ये दोनों आके इधर से और इधर से यहां मिलने की कोशिश कर रहा है. दिस टू आर अप्रोचिंग एट पॉइंट एफ. सो दीज आर कॉल्ड वर्चुअल लाइंस. ये डॉटेड है, ये डॉटेड है, डॉटेड लाइंस. इन्हीं सारी चीजों को ध्यान रखता है, छोटी छोटी चीजों को. बिकॉज दूसरी गलती, एक गलती यहां, दूसरी गलती, रे बनाया जा रहा है. रे मीन्स विच कैन बी
टेकन अलोंग द सिंगल डायरेक्शन, ये दिशा बता रहा है, रे एक दिशा बता रहा है. विदाउट पुटिंग द एरो मार्क इट इज नॉनसेंस. सो यू कैन नॉट हैव a line segment like this only in this mirror. It cannot be there. It is nonsense. Unless and until you put arrow mark, it is wrong. और सीबीएसई ने हाफ मार्क्स काटा है. एग्जामिनर को बोला गया है कि हाफ मार्क्स विल बी कट इफ एरो मार्क इज नॉट देयर, रॉन्ग एरो मार्क इज देयर ऑल्सो. एरो मार्क अगर नहीं है तब भी हाफ मार्क्स कटेगा, और अगर एरो मार्क गलत है तब भी कटेगा. गलत सही कहाँ से? ये रे आ रहा है आने का दिशा, रिफ्लेक्ट होके जा रहा है जाने का दिशा. ये रे आ रहा है आने का दिशा, बाउंस बैक कर रहा है जाने का दिशा. ऐसा नहीं हो सकता है कि ये रे आया, ये दोनों आ रहा है. इट कैन नॉट हैपन. आ रहा है आने का दिशा, जा रहा है जाने का दिशा. प्लेन मिरर में हमने बताया था आने का दिशा, वापस जाने का दिशा. इफ इट फॉल्स नॉर्मली, अगर ये नॉर्मल आ रहा है आने का जाने. फिर यहाँ एक गलती होती है कि पहले इस दिशा को दिखाया जाता है, बाद में इसको दिखाया जाता है. रॉन्ग है, बिकॉज पहले रे आया तब वापस किया, जंप किया. ये क्या बता रहा है? पहले ये जा रहा है फिर ये आ रहा है. दिस इज रॉन्ग कन्वेंशन. सो क्या बनाना चाहिए हमें? पहले आ रहा है फिर ये वापस जा रहा है. सो कीप रिमेंबर दिस वेरी माइन्यूट थिंग्स if you want to succeed in drawing the ray diagrams very clearly, and make sure that not even single mark should be cut, right? So this is the first ray, and I request you try at your home, take copy, take scale, always keep scale with you. Without scale nobody will trace the ray diagram. Okay, so this was the first rule. Now what is the second rule? Just opposite to it. अभी हमने लिया any ray coming parallel to the principal axis after reflection either actually passes through the focus or appear to pass through the focus in two different mirrors. Just उलट दो इसे. Any ray passing through the focus, passing through the focus goes parallel, just ulta, to the principal axis after reflection from the mirror. ये नोट कर लेते हैं. एनी रे पासिंग थ्रू द फोकस. अगर ये पासिंग लिखा गया इसका मतलब एक्चुअली पास. हमने बताया कि दो चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, इधर एक्चुअली पासिंग और वर्चुअली पासिंग. फाइनल क्या होगा? हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा. टू द एनी रे पासिंग थ्रू द फोकस गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. अगेन वी शैल हैव टू डायग्राम्स. concave mirror, principal axis pole, this is the focus. आप फोकस कहीं ले सकते हो, लेकिन जब फोकस ले लिया जाएगा तो P से F तक का जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस F से C का होगा. ये बार बार बताया जा रहा है, वो स्केल से मेजर कर करके लेंगे. इफ एनी रे पासिंग थ्रू द फोकस, any ray passing through the focus, but if we have this mirror, this is the principal axis, this is the focus. क्या इसमें एक्चुअल पास करेगा फोकस की तरफ? नहीं. so here we can have again scale. जहां डॉटेड होगा वहां स्केल बहुत जरूरी हो जाएगा हमारा. और by taking scale, suppose this ray is approaching towards the focus. Exactly focus की तरफ हमने लिया है, यहां से स्केल लेके फोकस की. Put arrow mark. As soon as you complete that line, put arrow mark.
so that it may become a ray. एक single unit of light is called ray, एक दिशा की ओर ray, and this is nothing but स्केल के साथ ही पहले डॉट बना लेंगे, सॉलिड खींच देंगे. दिस लाइन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द फोकस. सो व्हाट इज द रूल? इट मस्ट पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. So this is the arrow mark, right? It is bouncing back. But in case of concave mirror, it is going in this direction. This is actually passing through the focus, but parallel to the principal axis. Virtually going towards the focus, उधर जा नहीं रहा, उधर डॉटेड है, बट अप्रोच कर रहा है. वो हमें लग रहा है कि वो फोकस से मिलेगा अगर उस तरफ से देखा जाए तो. एंड फाइनल नियम तो वही है कि गो बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये कंफर्म करना है. फिर वही सी की बात हमेशा सीखेंगे. पी से एफ जितना लिया गया उतना ही सी से एफ से सी लेंगे. सपोज इन माई स्केल हियर इट इज 5 centimeter, so again 5 centimeter I am taking. This is C. Similarly here, this is PF, then this is FC. ये बनाने की प्रैक्टिस करनी है. अगर प्रैक्टिस इसे कर लिया जाए तो कभी गलती नहीं होगी. ठीक है. नाउ सी, नियम हमेशा एक ही रहेगा. If it is C, there will be normal. There will be normal. If it is C, there will be normal. This is normal. This is normal at this point. This is normal at this point. हमने क्या बताया? यहां जब बनाएंगे तो इस नॉर्मल को पार करेंगे, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है, रिफ्लेक्टेड रे भी इधर है. यहाँ इंसिडेंट रे इधर है, रिफ्लेक्टेड रे इधर है. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. उतना ही बड़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. कभी उधर नहीं जा सकता है, कभी यहां छोड़ के कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकता है, बिकॉज रूल इज बीइंग फॉलोड. एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये कभी ऐसा हो सकता है क्या? यहां से चला जाए? क्यों? फिर कल वाली गलती. आई जितना बड़ा है उतना बड़ा आर है क्या? नहीं है, बड़ा हो गया. सो इट इज रॉन्ग. अब इसे धीरे 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 करके इधर ले जाओ. जब तक यहां से नहीं जाएगा तब तक आई और आर बराबर नहीं होगा. सो दिस इज फॉलोइंग द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो टेक केयर. एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि P से F और F से C हमेशा दोनों डिस्टेंस को बराबर लेंगे. ये प्रैक्टिस बना लेना है. मेक इट अ हैबिट. एक स्केल. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस, and after drawing the principal axis take P, then P to F, whatever length is being taken, take the same length from F to C. ये हमेशा प्रैक्टिस में अगर रख ले बनाते समय तो इमेज फॉर्मेशन में कहीं गलती नहीं होगी. सो दिस इज द सेकेंड रे, सेकेंड रूल टू ड्रॉ द रे डायग्राम. नाउ थर्ड रूल. फर्स्ट और सेकेंड में क्या अंतर हुआ? फर्स्ट का जस्ट ऑपोजिट है सेकेंड रूल. फर्स्ट रूल वाज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, ये जाता हुआ नजर आएगा. दूसरा रूल क्या हुआ? जो फोकस से आएगा चाहे फोकस की तरफ आता दिखाई देगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा. Now what is the third one? This is the third rule. This is again very important. Any ray coming through the center of curvature retraces means retrace back, वापस आता है उसी पाथ में. करेंट curvature retraces back along the
सेम पाथ, कहाँ से, पहले ही आ जाएगा नहीं, टकराने के बाद आएगा, तो क्या लिखेंगे, along the same path after reflection from the mirror, reflection from the, so this is the very important one, this is very important one. हमने बोला भी है, इसके पहले हमने दिखाया है कि प्लेन मिरर में if normal incidence is there, angle I equals 0 degree, angle R equals 0 degree, it means that it should retrace its path. Okay, that rule has been followed here. Any ray coming through the center of curvature, अब center of curvature से सपोज दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, या एफ नहीं बना रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट है, एक ही पॉइंट है इसलिए हमने लिया है सी, कहीं भी आप ले सकते हो. इफ एनी रे पासिंग डायरेक्टली थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा, सपोज पॉइंट एम, इस पर क्या होगा वो, व्हाट इज सी एम, सी एम इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट एम, यही हो गया. रे कमिंग नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल और अलोंग द नॉर्मल, ray falling perpendicular to the surface, ray falling perpendicular to the surface because it is perpendicular, terms में बताया गया. if it is falling perpendicular, angle I must be equal to 0 degree again. if I 0, R must be 0 degree, so it should retrace its path. देखो ये आया ये गया, ये आया ये गया, जब भी वो नॉर्मल होगा, क्योंकि C से जब भी जाएगा मिरर पर वो नॉर्मल ही होगा, ये बताया जा चुका है. सो सी एम इज नॉर्मल, एम टू सी चला जाए. सो C से आया आने का, देन ये गया जाने का, यहाँ क्या साइन है, परपेंडिकुलर. सो दिस इज द थर्ड रूल. नाउ सेम टू बी ड्रॉन हियर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, this is suppose C. have a scale again from this side or this side, किधर से भी बना सकते हैं. सपोज इधर से बना लिया, C तरफ मिलाया, यहां से पहले बोला गया डॉटेड पहले खींचना सीखेंगे, पहले डॉटेड खींचा हमने विदाउट रिप्लेसिंग द स्केल. कंटिन्यू दिस वन, आ रहा है, आता हुआ नजर आ रहा है, किधर से, इधर से अगर कोई देख रहा है तो लग रहा है कि वो सी की तरफ जा रहा है. फिर रूल वही होगा, सी से पास करेगा, सी से पास करेगा, एम पर मिलेगा, ये पॉइंट एम है, यहाँ क्या हो गया, वो सी एम इज अगेन नॉर्मल एट पॉइंट एम. सो दिस इज परपेंडिकुलर. इफ दिस इज परपेंडिकुलर, इधर हियर और हियर, इधर से भी परपेंडिकुलर, कहीं से भी ले सकते हैं, इट इज रिट्रेसिंग बैक द पाथ, इट इज गोइंग बैक बिकॉज C की तरफ आ रहा है, वो नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल इंसिडेंस के लिए I इक्वल्स 0 डिग्री, R इक्वल्स 0 डिग्री, सो इट शुड रिट्रेस इट्स पाथ, सो इट गोज बैक अलोंग द सेम पाथ. कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है. मेक इट वेरी क्लियर. टेक स्केल, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव द डॉटेड लाइन, देन ड्रॉ द कंटिन्यूअस पाथ, सॉलिड लाइन पाथ. सो दिस इज कॉल्ड सॉलिड, दिस इज कॉल्ड डॉटेड line, and this is called solid line. Solid is actual, dotted is virtual. This was the third point, third rule to draw the ray diagram. Now last, that is fourth point, and this fourth point is, मैं बोलता हूँ फोर्थ पॉइंट को कम से कम यूज करना चाहिए स्टूडेंट को. इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं यूज करना चाहिए, बहुत कम समय में इसको यूज करते हैं हम, कुछ कारण है, ध्यान से सुनिए. फोर्थ पॉइंट इज, एनी रे फॉलिंग एट पोल ऑफ द मिरर, any ray falling at the pole of the mirror obliquely, तिरछा टेढ़ा आएगा, obliquely
goes back at the same angle as that of the incidence angle. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो होना ही है. एनी रे फॉलिंग एट द पोल ऑफ द मिरर ऑब्लिकली, तिरछा, पोल की तरफ सीधा नहीं, तिरछा अगर फॉल कर रहा है, टेढ़ा फॉल कर रहा है, गोज बैक एट द सेम एंगल एज दैट ऑफ द इंसिडेंस एंगल. इंसिडेंस एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस. सी, दिस इज द कनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. आपको विदाउट स्केल नहीं बनाना है, मैं यहां बना रहा हूं, आपको हमेशा स्केल यूज करना है. दिस इज पी. एनी रे हैपेंस टू फॉल एट द पोल ऑब्लिकली, तिरछा. इफ दिस इज पी प्रिंसिपल एक्सिस, तो दिस मस्ट बी सी, हियर मस्ट बी एफ एंड सो ऑन. सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. हमने बोला था अगर यहाँ C ले लिया जाए, उसके आधार पर F ले लिया जाए, C से किसी पॉइंट पर मिरर पर मिलेगा, उसे नॉर्मल कहेंगे, तो CP इज द नॉर्मल. हम अगर इसे नहीं भी लिखते हैं तब भी दिस इज नॉर्मल, isn't it? So this is normal. So this is angle of incidence. उतना ही बड़ा एंगल इधर बनाना है, because this is angle of reflection. This is called angle of reflection. I must be equal to R. First of all, we have to search the normal. So what is normal? It itself is the normal. It is the normal because if it is principal axis, ये C पर से ही जाएगा, F से ही जाएगा, और C से कहीं मिलता है मिरर पर, वो नॉर्मल कहलाता है. If I write here C, CP is the normal at point P. If it is normal, this is incident ray, so this is angle of incidence. If this is angle of incidence, this ray must go from the other side of the principal axis, so that angle R must be equal to angle I. ये यहाँ नहीं हो जाएगा, ये यहाँ नहीं हो जाएगा इससे, क्योंकि फिर एंगल वो बड़ा होगा एक ही जगह से. तो हमेशा, अब क्यों इसे कम लेना चाहिए, क्यों स्टूडेंट को बोला जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि इसे कम से कम यूज करो, बिकॉज वी हैव टू टेक केयर ऑफ एंगल हियर. एंगल I मस्ट बी इक्वल टू एंगल R. प्रोटेक्टर चाहिए, और प्रोटेक्टर लेके एंगल I और R बराबर करेंगे, वरना गलत हो जाएगा वो. ये कनकेव मिरर ऐसे लिया अंदाज पर, ऐसे लिया तो गलत हो गया, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन दिस I इज नॉट इक्वल टू R. जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इनवैलिड हो गया यहाँ पर, वो गलत हो गया, इमेज गलत होगा. इसलिए इमेज बनाते समय इसे अगर लेना है कोई बात नहीं, बट प्रोटेक्टर यूज करना है और एंगल I और एंगल R हमेशा बराबर बनाना है. अब इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर हमेशा दोनों मिरर में प्रैक्टिस करनी है घर पर. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल. इफ यू वांट टू टेक C, देन राइट C, और यू कैन लीव. दिस इज इंसिडेंट रे falling at the pole obliquely. This is angle I, because this is again the principal axis, there must be C anywhere. So this is PC, normal at point P. So angle I, then angle R. दोनों सेम, बट दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कनकेव मिरर. यहाँ लग रहा है कि दोनों एक ही जैसा हो रहा है, रे डायग्राम एक ही जैसा हो रहा है. सर इसमें डॉटेड नहीं आया है, डॉटेड क्यों होगा, उधर तो जाना ही नहीं, तो डॉटेड हो क्यों आया I पर. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये नॉर्मल है, यहाँ से ये नॉर्मल है, C से आ रहा है, नॉर्मल है. नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. I इक्वल्स R होना चाहिए, I इक्वल्स R. प्रोटेक्टर लेंगे, इसके साथ एक एंगल बनाएंगे जो I के बराबर होगा, I इज इक्वल टू R. सो दिस इज ऑल अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट 4 रेज विच आर नीडेड वेरी मच इन केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन. तो इन सभी को बढ़िया से कॉपी पर प्रैक्टिस करनी है. सबसे पहले पेंसिल, शार्प पेंसिल शुड बी देयर, इरेजर मस्ट बी देयर, स्केल मस्ट बी देयर, प्रोटेक्टर मस्ट बी देयर फॉर दिस केस ओनली, अदरवाइज प्रोटेक्टर इज नॉट नीडेड हियर. एंड खूब प्रैक्टिस करनी घर पर, ठीक है. ये अगर प्रैक्टिस सही से हो गई दोनों मिरर में बार बार, सारे नियम को अगर याद कर लिया हमने, सरसरी निगाह डालते हैं सारे नियम पर. फर्स्ट नियम क्या था,
जो भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा वो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। कनकेव मिरर में कन्वेक्स में फोकस की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। जो नजर आएगा उसे कैसे बनाएंगे, डॉटेड लाइन से बनाएंगे। दूसरा क्या था, रिवर्स कर दो, जो भी फोकस से जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भागेगा। थर्ड क्या था, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो नॉर्मल होगा मिरर पर, वो उसी पाथ पर रिटर्न बैक होगा। आई बराबर 0 डिग्री, आर बराबर 0 डिग्री, एंड व्हाट इज लास्ट, लास्ट इज। ओके, सब याद हो गया? नहीं याद हुआ फिर प्रैक्टिस करेंगे और उसे याद करेंगे। नेक्स्ट वी हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि हमने जो अभी तक बोला कि P से F जितना डिस्टेंस लेना है उतना ही F से C लेना है, ये बता दिया गया। ये क्लास 10th में डेरिवेशन में नहीं है, इट इज आउट ऑफ सिलेबस, बट इन NCERT इट इज गिवन, हिंट इज गिवन दैट why PF is equal to FC. In class 12 we have to prove this one, but let us have, suppose this is the concave mirror, this is principal axis pole, this is F and this is PF, जितना है उतना ही C बना लेंगे। ध्यान रखिए C, this is C, this length must be equal to this length। अभी प्रूफ कर रहे हैं हम लोग कि ये दोनों बराबर क्यों होना चाहिए। Now suppose one ray is coming like this parallel to the principal axis, रूल क्या है, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा वो कहां से जाएगा, फोकस, इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। ये कनकेव मिरर है, कन्वेक्स होगा उसको प्रैक्टिस कर लेंगे आप, अपीयर होगा पास करता हुआ, रूल एक जैसा होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन खोजना है। एक नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल डाल दिया, दिस इज पॉइंट M, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल के साथ I, नॉर्मल के साथ R, ठीक है। नाउ दिस इज CM, नॉर्मल एट पॉइंट M, see this triangle CFM, in triangle CFM, 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 this ray and this line are parallel to each other, these two are parallel to each other, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। पैरेलल लाइन में क्या रूल हमने पढ़ा है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, so if this is angle I, this must be angle I, isn't it? If this is angle I, according to rule of reflection, what we know, I equals R, so this is I, this is R, so these two angles are equal in this triangle। किसी भी एक ट्रायंगल में दो एंगल अगर बराबर हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड बराबर हो गया, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, I के ऑपोजिट वाला FM, R के ऑपोजिट वाला CF, सो क्या हो गया यहाँ, एंगल I बराबर एंगल R, देयरफॉर CF इक्वल्स FM, CF इक्वल्स FM, I R बराबर है, ऑपोजिट साइड्स बराबर हो गए, CF इज इक्वल टू FM। Now here one convention is there, one assumption is there। What is assumption? जो भी फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे भी हमने ये बोला है कि जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ ये होगा, यानी PF जो होगा CF के बराबर होगा, या जो PF होगा वो PC का हाफ होगा। ये सिर्फ एक माना गया है कि अगर मिरर बहुत छोटे कर्वेचर का हो, छोटे कर्वेचर का, जिसे टर्म्स रिलेटेड में एक और पॉइंट हमें डिस्कस करना चाहिए था, जिसे हम अपर्चर के नाम से जानते हैं। दिस इज मिरर, देन दिस इज कॉल्ड अपर्चर, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। इस एक्सट्रीम पॉइंट को इस एक्सट्रीम पॉइंट से अगर एक सीधी लाइन से मिला दे, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। अगर ये मिरर ऐसा हो जाए, कम फ्लैट हो जाए, अपर्चर बढ़ जाएगा, और ऐसे हो जाए अपर्चर और बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा, ये हो जाएगा अपर्चर छोटा।
और होगा छोटा, isn't it? ये जो लिया गया है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए एक विशेष स्थिति में है, वो क्या है कि एज द मिरर इज ऑफ वेरी शॉर्ट अपर्चर, अपर्चर मीन्स ये डिस्टेंस को, इस एक्सट्रीम पॉइंट से इस एक्सट्रीम पॉइंट का डिस्टेंस को अपर्चर बोले। अगर ये छोटा अपर्चर का है जिसके लिए सारा फॉर्मूला ट्रू है वरना सही नहीं है, उसी पर सारा चल रहा है मिरर का खेल। इफ मिरर इज ऑफ वेरी शॉर्ट अपर्चर, इफेक्टिव डायमीटर बड़ा छोटा हो, ये बहुत छोटा मिरर हो, उस केस में आप देखो कि पॉइंट एम और पॉइंट पी दोनों बहुत क्लोज होगा। सपोज ये मिरर छोटा मिरर एक ले लिया, इसका अपर्चर ऐसा है, ये P है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से एक ड्रॉ किया गया, यहां ये जो पॉइंट है इसको M लिया गया है, इसको P लिया गया है, MP। इफ इट इज अ वेरी शॉर्ट अपर्चर देन पॉइंट्स M एंड P आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक ना। अगर बहुत क्लोज हो जाए P और M, और हमने यहां लिया है F और यहां लिया है C, हमने इसे ऐसे नॉर्मल बनाया है और यहां से पास किया एंगल I एंगल R। इस केस में अगर M और P बहुत क्लोज हो जाए तो व्हाट कैन वी सी, वी कैन से दैट FM इज नियरली इक्वल टू FP। FM और FP लगभग बराबर हो जाएगा क्योंकि M पॉइंट बहुत क्लोज होगा P के, ये ऐसे होगा अगर ये छोटा अपर्चर का होगा, अगर होगा तो और जितना सारा फॉर्मूला होगा वो सारे फॉर्मूलाए इस शॉर्ट अपर्चर के लिए सही है और उन्हीं को हम लोग पालन करेंगे, बार बार उसे बोलेंगे नहीं हम कि शॉर्ट अपर्चर का है, शॉर्ट अपर्चर का, बिकॉज दीज आर वैलिड फॉर शॉर्ट अपर्चर ओनली। सो इफ दिस इज ऑफ वेरी शॉर्ट अपर्चर देन पॉइंट्स M and P are very close to each other, और अगर बहुत क्लोज हो जाए देन FM इज नियरली इक्वल टू का साइन है FP, FM और FP, क्योंकि ये जो FM है वो लगभग ऐसे आएगा, अगर छोटा अपर्चर का होगा यहां सट जाएगा, तो FP चाहे FC, FM चाहे FP दोनों बराबर होगा, जैसे नियरली इक्वल। अगर ऐसा हो जाए तो हम इक्वेशन नंबर 1 अगर डाल दें इसे तो क्या कह सकते हैं, जो CF है वो FP के बराबर है, तो CF इक्वल्स FM, CF इक्वल्स FM और FM इक्वल्स क्या हुआ FP। इसे सेकेंड करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड what we get that CF equals FP, CF equals FP। here is left side CF FM के बराबर है, FM किसके बराबर FP के बराबर, तो अगर इस FP को यहाँ FM की जगह पर रखे तो क्या मिला CF equals FP, जो बार बार आपसे बोला जा रहा है कि हमेशा इक्वल लेना चाहिए और तभी रे डायग्राम सही होगा, वो इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि ये हमारे पास शॉर्ट अपर्चर के लिए सब किया गया है, ठीक है। तो CF इक्वल्स FP, CF इक्वल्स FP, हमने बताया आपको कि यहां से यहां तक क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर और यहां से यहां तक क्या है फोकल लेंथ। फोकस F was the focus, सो P से F तक की दूरी को क्या बोलेंगे फोकल लेंथ, फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ, नॉट कैपिटल F, कैपिटल F इज द पॉइंट, फोकस पॉइंट, स्मॉल f is the focal length and P to C is radius of curvature. So what we have got CF is equal to this one. So CF is equal to FP, इसका मतलब क्या हुआ कि CF प्लस FP कैपिटल R, CF इक्वल्स FP यहां बताया गया है। इस CF को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना PC माइनस PF इक्वल्स FP, P to C
में से पी एफ को माइनस कर दिया जाए, पी एफ को क्या बचेगा, सी एफ इज इक्वल टू पी सी माइनस पी एफ इज इक्वल टू एफ पी। इस पी एफ को उठा के उधर कर दो तो क्या बना, पी सी इक्वल्स पी एफ प्लस एफ पी, पी एफ प्लस एफ पी बोलो चाहे पी एफ बोलो दोनों बराबर है। सो पी एफ और पी एफ कितना हुआ, 2pf। सो पी सी इक्वल्स 2pf। अब ध्यान से देखा जाए, पीसी क्या है, कैपिटल आर, पीसी क्या है, कैपिटल आर, पीसी कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 और पीएफ कितना है, फोकल लेंथ। सो व्हाट इज रिलेशन, एफ इक्वल्स आर बाय 2। और इसीलिए रे डायग्राम खींचते समय हमेशा इसी का पालन किया जाता है कि जो फोकस पॉइंट लेते हैं वो पी से एफ जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस एफ टू सी लेते हैं। वो स्केल से बराबर बराबर मेजर करके हमेशा लिया जाता है और तभी हम सिर्फ रे डायग्राम सही बना सकते हैं, वरना रे डायग्राम नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए दिक्कत नहीं होती है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में समझ जाना है पी एफ इज इक्वल टू एफ सी, लेकिन मेजरमेंट तो करना नहीं हुआ। यहाँ पर जब भी रे डायग्राम बनेगा तो पी एफ और एफ सी जब तक स्केल से मेजर करके नहीं ले ले तब तक रे डायग्राम नहीं बनेगा। सो मेक इट वेरी क्लियर, all you have to practice at your home very clearly, then after we shall proceed for the ray diagram, right? Stop.